What is this anthracene? We have to discuss. Anthracene is one of the polynuclear hydrocarbon. Polynuclear aromatic hydrocarbon. See? Polynuclear aromatic hydrocarbon. Why it is called polynuclear? Because it contains more than one benzene ring. Means इसमें एक से ज्यादा aromatic रिंग है. ये हो गया सिंगल रिंग, ये हो गया सेकंड रिंग, ये हो गया थर्ड. Means this anthracene contains three benzene ring which are attached with a bond overlapping. Okay, this is clear one. पॉलीन्यूक्लियर क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा अरोमेटिक रिंग्स है, इसलिए पॉलीन्यूक्लियर. Why this is called aromatic? Because in this structure it contains the aromatic bond and it also follows the Hackel's rule. जैसे कि इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स है और ये फॉलो करता है हकेल रूल जो कि है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे समझेंगे? ओके, तो कैसे समझेंगे इसको हम? ओके, इसको कैसे समझेंगे हम? अब देखिए, 4n+2 पाई हकेल्स रूल जो है इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? n मीन्स, जैसे कि अपना ट्रिक है, n मीन्स एनी इंटीगर नंबर. तो वी हैव टू पुट डाउन एनी इंटीगर नंबर की जगह पर 1 2 3 4 इस तरह से. तो एक तो हमें पता है ये होता है बेंजीन में. ओके, दो रिंग काय में होते हैं? जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा है नैफ्थैलीन के अंदर, नैफ्थैलीन. ओके, अब ये तीन रिंग है जो है, अब इसको देखेंगे क्यों, तो दो तो है ही नहीं, दो का नैफ्थैलीन का आएगा. तो हमें अभी तक तीन का पता नहीं है, तो 4 × 3 + 2 मीन्स 4 × 3 12 +2 = 40. ओके, अब इसमें के पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? Actually, we have to first calculate the pi bonds. This structure contains 1, 2, 3. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pi bonds means which is equivalent to 14 pi electrons. ये यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 3 रखने के बाद, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में 4n+2 पाई हकेल्स रूल हम कैलकुलेट करते वक्त, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर भी 14 आता है. मीन्स मैचिंग, हेंस इट इज अरोमैटिक. हेंस इट इज अरोमैटिक. Okay, hydrocarbon, because this contains the carbon and hydrogen in the structure, that's why it is a hydrocarbon. Anthracene is a polynuclear aromatic hydrocarbon. Polynuclear बोला जाता है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस यानी रिंग्स है. अरोमेटिक क्योंकि ये हकेल रूल फॉलो करता है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड जो भी हमें कंडीशंस है हकेल रूल के वो सब फॉलो होते हैं. कैसे फॉलो होते हैं? इस तरह से कि इसका इंटीगर अगर हम 3 रखते हैं एन की जगह पर तो टोटल आता है 14 इलेक्ट्रॉन्स बाय द फॉर्मूला. एंड दीज 3 रिंग्स or the structure of anthracene also contains the 14 electrons. That's why it is a aromatic in nature. Okay, here next we will see about the orbital picture of anthracene. Okay,
orbital picture of anthracene. First of all, we have to calculate the molecular formula of anthracene. We have to draw. पहले हम इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं. Okay? ये हो गए स्ट्रक्चर. इसमें कितने कार्बन होते हैं? वी हैव टू नंबर इट. अकॉर्डिंग टू दैट नंबर वी कैन सी. Okay? 4, 5. सॉरी, यहाँ पर नहीं है 5. और naphthalene होता है. First we have to complete the terminal rings. First we have to complete the numbering of terminal rings, then we will go towards the center ring. This is the numbering. This is the total outer set, remaining 1. Okay, here 11, 12, 13, 14 means carbon here 14 hydrogens. Only it is only 10 hydrogens. How? See the valleys where these are. Here are also the carbon. Okay, here carbon 1 2 3 4, carbon 1 2 3 4, carbon 1 2 3 4, carbon 1 2 3 4 means these 4 means carbon number 11, 12, 13 and 14 have fulfilled their valency with bondings with another carbon. While these remaining, whatever the 10 numbers 1, 2, 3, 4, these all are bonded with only 3, like this. We will study 1, 2, 3. Second carbon 1, 2, 3. Third carbon 1, 2, 3. Fourth carbon 1, 2, 3. Likewise. Okay. This is the molecular form. Out of these 14 carbon, 10 carbons, sorry, all 14 carbons are sp2 hybrids. All carbons. Out of these 14, 10 carbons having the similar arrangement. Which 10? These 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All these. In this, each carbon is bonded with 2 sp2 sp2 bond. 2. One bond is with sp2, oh sorry, sp2, yes, and one is with the p orbital, that is a pi bond, that is p orbital overlapping. Is it अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? देखिए इसमें क्या होता है, इतने जितने भी 14 कार्बन है उसमें से 10 कार्बन जो है सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, उसमें से 10 कार्बन का अरेंजमेंट सिमिलर है. इस 10 कार्बन, ईच कार्बन हैविंग द वैलेंसी 4, तो दो वैलेंसी कैसे फुलफिल होती है? sp2 हाइब्रिड है. जैसे कि इस कार्बन का हम स्टडी करेंगे, फिफ्थ कार्बन, हर कार्बन वैसे ही होगा. अब फिर फिफ्थ कार्बन का जब आप स्टडी करेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला, ये है sp2 sp2, ये वाला भी है sp2 sp2. हो गए दीज टू बॉन्ड्स, यहाँ का और यहाँ का. ओके, अब जो हमने देखा था 1 sp2 एंड s ऑर्बिटल का. ओके, तो इसको कहाँ रहेगा? ये जो हम यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाते हैं ये रहेगा हमारा sp2 s, ये वाला. और जो p ऑर्बिटल या पाई है ये वाला. इस तरह से हर कार्बन, जो 10 कार्बन हमने पॉइंट आउट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी कार्बन हैविंग दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. तो रिमेनिंग 4 जो है, जो कि कार्बन नंबर है इसमें 11, 12, 13
और 40, इस कार्बन नंबर पर अरेंजमेंट क्या होगा? इसमें एडिशनल आएगा ईच कार्बन, हर कार्बन जो है अटैच्ड विथ 3 sp2 sp2 orbit and only one, that is a pi bond. This is a little bit और a small difference. यहाँ पर होते हैं दो, यहाँ पर तीन, यानी तीनों की तीनों बॉन्ड जो है sp2c अटैच है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे होता है। ये 11 नंबर है जो अरेंजमेंट, एक, दो और एक तीन, और ये बचा हुआ 5, इस तरह से। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट और ऑर्बिटल स्टडी और ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ यूर अंथ्रासीन। अब इसको हम लिखेंगे किस तरह से, तो इसको लिखना भी बहुत आसान है, और लिखने के लिए जैसे हमने बेंजीन रिंग वगैरह स्टडी किया है उसी तरह से हम इसे स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कि ओके, अब जो है हमारा, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। मैं पहले बॉन्ड्स निकालता हूँ, फिर उसमें कार्बन डिस्प्ले। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिंग का। ओके, अब इसमें मैं सब sp2 पहले बताता हूँ। इस कार्बन के ये sp2, इस कार्बन के ये sp2, ये sp2, sp2, इस कार्बन का भी ये sp2, इधर एक sp2 आएगा और इधर इस कार्बन का sp2, 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 इधर वाला कार्बन से मिला दो। ओके, ये हो गया एक रिंग। इसी तरह से दूसरा रिंग आएगा। दूसरे में भी सिमिलर टाइप से, उसको थोड़ा सा अलग इंक से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन रहेगा, एक और मतलब कॉमन, इसके जो बॉन्ड्स हैं, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2, उसके बाद इसका sp2, 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 इसकी ये 3, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ sp2। ओके, अब हर एक का p ऑर्बिटल अभी पेंडिंग है। अब है हमारा एंडिंग वाला, इसका sp2 यहाँ पर sp2, 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 हर एक की कार्बन्स। ओके, इस तरह से आ गए। अब हर एक का जो है p ऑर्बिटल पेंडिंग है। अब इसका हम पहले sp2 के सब बॉन्डिंग हो गए, सिर्फ बचे ये वाले, तो इसका H, 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 यस, 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 यस। ओके, दिख रहा है ना सभी? ओके, इस तरह से। इसके बाद हमारा जो पेंडिंग p ऑर्बिटल है, यहाँ पर, यहाँ पर, सिर्फ वन साइडेड मैं बता रहा हूँ, सभी पर हमारा एक p ऑर्बिटल, जैसे कि हमारा हकेल्स रूल में बोलता है कि ईच कार्बन शुड कंटेन द p ऑर्बिटल। अब इनका साइड बाय ओवरलैपिंग होगा, किस तरह से? दिस इज द ओवरलैप। अब इसको हम नंबरिंग देकर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14। हम एक का चेक करते हैं, जैसे कि 1 का sp2 एक हो गया, sp2 दो हो गए, और एक तीसरा sp2 यस जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ओके, ये sp2 यस, sp2 यस। जैसे कि हमने बताया था कि 10 कार्बन्स जो है हमारे, 10 कार्बन्स हैव द 10 के 10 कार्बन में 10 कार्बन का सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें कि रहेंगे sp2 बॉन्डिंग दो, ओके, sp2 एक, और पाई बॉन्ड एक। आगे यहाँ पर sp2 के दो बॉन्ड, sp2 के दो बॉन्ड, sp2 का एक बॉन्ड, और पाई बॉन्ड एक, ईच कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन नंबर 1 to 10 में सिमिलर अरेंजमेंट। ऑर्डर जो हमें बताया था कि डिफरेंस थोड़ा सा चेंज होगा या थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो रहेगा हमारा कार्बन नंबर 11 से लेकर 14। कार्बन नंबर 11, 12, 13 और 14। इसमें क्या होता है, तीन बॉन्ड जो है sp2 के होते हैं और 1 पाई। इस तरह से चार वैलेंसी फुलफिल होता है। देखते हैं 11 नंबर का sp2 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 दूसरा वाला sp2 तीन हो गए, और ये बचा हुआ पाई। दैट इज द दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एंथ्रासीन, जो कि इजीएस्ट है। तो इसमें इस तरह से बॉन्डिंग का अरेंजमेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज होकर कैसे होगा, इस तरह से। ओके, अब इसका जो है एरोमेटिसिटी तो आपको बता दिया, इट इज एरोमेटिक, क्योंकि हर कार्बन पर p ऑर्बिटल है, ईच कार्बन है द p ऑर्बिटल, कौन सा भी कार्बन चेक करो, और वो इक्वी डिस्टेंस है क्योंकि बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर में है। इट इज नेक्स्ट, अब इसके जो स्ट्रक्चर्स है वो हम लिखेंगे कैसे। okay, how we will write the structures और resonating structures of benzene ring, या कितने स्ट्रक्चर इसके लिख सकते हैं उस तरह से, या आप इसे बोल सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, वो भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट करूंगा, सिर्फ डिफरेंस है बॉन्ड अरेंजमेंट में। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। ओके, ये जो बेसिक स्केलेटल, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रिंग में तीनों के तीनों पाई बॉन्ड दे दिए, उसके बाद आगे 7 पाई बॉन्ड्स। दूसरा स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका, जस्ट वी हैव चेंज द पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स इन फर्स्ट रिंग ओनली। चेंजिंग द पोजीशन, क्या करना है, ये जो पोजीशन है इसको सिर्फ हम चेंज करेंगे। क्या किया है, जो वर्टिकल बॉन्ड था उसको हमने अपोजिट जस्ट मूव वन, बाकी सब सेम रहे। उसके बाद का अरेंजमेंट, सभी स्ट्रक्चर आपको दिखने भी चाहिए सिंगल स्क्रीन में। इस तरह से अब ये आ गए इधर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर में या फर्स्ट रिंग में हमने दे दिए डबल बॉन्ड, उसकी वजह से क्या एंड रिंग में तीन बॉन्ड आएंगे सेम, या इसका इसका मिरर इमेज भी आप इसे कह सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड का। ओके, और फोर्थ वाला रहेगा अरेंजमेंट इसका चेंज करना। ए पॉसिबल चार कैनोनिकल फॉर्म है, इसमें का आप जो भी लिखेंगे दैट इज द कंसिडर्ड वन, ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स। ओके, एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी से इसके ऑल कार्बन बॉन्ड्स ऑफ एंथ्रासिन नॉट हैव द सेम लेंथ नहीं है सभी का, थोड़ा बहुत चेंज है, क्योंकि इसमें जो है
ये जो 4 कार्बन है हमारे 11, कार्बन नंबर 11, 12, 13 और 14, इसका अरेंजमेंट जो है बाकी 10 कार्बन से डिफरेंट है। इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ समवhat चेंज होता है। बाकी इसमें जो है जैसे कि स्ट्रेंथ होता है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग है, बट इस केस में कार्बन 11 टू 14 के केस में सभी बॉन्ड्स कार्बन टू कार्बन, नो हाइड्रोजन इज इन। That's why the bond length and the bond angle somewhat different than the naphthalene. Okay. नेक्स्ट अब इसका आप नेफ्थेलिन के जैसे रिएक्शंस है या फिर सिंथेसिस, इसका जो मेजर सिंथेसिस कमर्शियल पर्पस पर होता है कोल टार द्वारा। सिंथेसिस कोल टार के जरिए होता है। कोल टार में ये प्रेजेंट होता है ओनली 1%, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Okay. We will discuss this in the later on.